दयालबाग एलोरा ब्रांच में हुआ पहला रीजनल साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन। 4 मई को हुई साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन में सीनियर कैटेगरी की प्रतिस्पर्धा राधा स्वामी सत्संग सभा के आला पदाधिकारियों सहित कई विशिष्ट हस्तियां हुई शामिल। 4 और 5 मई एलोरा ब्रांच के लिए बेहद खास और विशेष जिम्मेदारियों से भरी थी। आखिर फर्स्ट रीजनल साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन जो होने वाला था। 4 मई को एलोरा ब्रांच में साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन की शुरुआत हुई प्रार्थना से। अपने स्वागत संबोधन में रीजनल सेक्रेटरी यूपीआरएसए प्रेमी भाई विकास सिन्हा जी ने कहा, very first regional knowledge for children science exhibition and competition with the theme of science, satsang and society. Your dedication, hard work and passion for science has made it possible for today's students. Your remarkable achievement is a testament to your unwavering dedication, tireless effort, and insatiable curiosity. As you embark on this final leg of the journey, remember that every question holds an opportunity for discovery, and every challenge a chance to innovate. So embrace the thrill of exploration and let your imagination soar. Throughout this journey, you have not only demonstrated your academic prowess, but also your resilience, teamwork, and determination. These qualities will undoubtedly serve you well as you tackle the challenges that lie ahead. But amidst the intensity of competition, remember to cherish every moment of discovery, every spark of inspiration, and every friendship force. For in the world of science,
collaboration and camaraderie are just as vital as intellect and innovation. इसके बाद हुआ जजेस का परिचय। was Coveted top 2% in world ranking of scientists in optoelectronics and photonics, and we take such a pride in him. What we must also know is he is a very much a product of Dalbag education, and he did his BTech from EI before embarking on his illustrious career abroad. He is currently assistant professor at Department of Computer Science, University of Western Ontario, as associate professor in Electrical and Computer Science Department. His research interests include फर्स्ट रीजनल साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन के आयोजन से जुड़ी कई रोचक बातें खूबसूरत स्लाइड्स के द्वारा साझा की गईं। रूरल या रिमोट क्षेत्र हैं, उनके बच्चों को भी समान अवसर उपलब्ध कराना। Call for participation was made in January 2024. ये देखा गया है कि थोड़ी सी मेंटरिंग से ही कुछ रिमोट ब्रांचेस के बच्चों ने कुछ महीने पूर्व हुई चेस जैसी कॉम्प्लेक्स गेम के कंपटीशन में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। मालिक की अपार दया से जहां एक साल पहले रीजनल लेवल कंपटीशन में 30-40 बच्चे भाग लेते थे, वहां आज साइंस डे में करीब 350 बच्चों ने भाग लिया। इसके बाद दौर शुरू हुआ बच्चों में प्रतिस्पर्धा का। Very good work. Can you tell us a little bit more about whether the student prospect, whether the prospective student Recording stopped. As of because we have the baseline and we are already building language, but we have planned to implement all other languages so that it will be easy for students of each particular to communicate with the language. Previously, this is the new system that we are going to do. It's going to be based on merit, right? The previous marks. However, that is a considerable factor, but it's not the only factor, right? And then on that basis, it will end up providing us suitable recommendations as to things that we will be able to manage ourselves, right? Because there's no point in harder strain if you can't handle it, right? An electrocardiogram ECG is a quick test to check the heartbeat. It records the electrical signals in the heart. Sticky patches for the electrode are placed on the chest and sometimes on the arms or legs. Buyers connect the patches to a computer which prints or displays results. Here, we also have a DHT11 sensor which measures ambient temperature and humidity. Real-time data from all these sensors is sent on IoT so it can be accessed anywhere in the world. Thank you. 5 minutes done. A science was an Ignis device designed to capture natural sunlight from rooftops and transport it into interior spaces. Next slide, please. As you can see, this strip consists of a transparent acrylic tube, a reflective polished metal tube, and a polycarbonate clear-bright diffuser. Now we'll discuss about its mechanism. Sunlight capture. Sunlight tube gathers sunlight using a rooftop dome or light capturing unit. Insulating the diameter is of 10 to 14 inches. Now for making the tube reflective, we have used aluminum sheets, which were then pasted on the inner side of the reflective tube. The gradient level increases the surface area of absorption. These natural base systems are more efficient. They can have several properties. They lead to more nitrate removal, more phosphate removal, more antibacterial resistant gene removal. सिर्फ प्रेजेंटेशन देना ही काफी नहीं था, प्रतिभागियों को जजेस के कठिन प्रश्नों का भी जवाब देना था। So you talked about using the data to recognize certain kind of patterns for diseases. Did you look specifically into something that can be, identified when you have the data from the oxygen saturation as well as ECG and temperature? Is there any particular disease that or health concern that you can think of that can be looked into or can be found out based on these three data? इन यंग बडिंग साइंटिस्ट्स ने राष्ट्रोत्थानम से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। रा धा स्व आमी
मैं व्योम जहांगीर। मेरा नाम धीर सत्संगी है। मेरा नाम धुर सत्संगी है। और मैं अक्षर सहाय हूँ। मैंने बनाया है एक ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि ये छोटा एक डिवाइस है। जैसे कि आप देखेंगे तो नॉर्मली जब आपको कोई दिक्कत होती है, आपको पहली बात तो है जब आपको कोई दिक्कत होती है, जब आपको बुखार आ रहा है या कुछ आपको हो रहा है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। और दूसरी चीज़, आप हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। जैसे कि अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हैं, कोई इमरजेंसी है, उसमें डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। और जैसे ही कोरोना वायरस था, उसमें जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो डॉक्टर से बातचीत करना ही बहुत एक तरह से मुश्किल हो रहा था। इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया है, जो है ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये है क्या, ये एक डिवाइस है, ये एक छोटा सा डिवाइस है, वो आपने घर पे रखिए। उसमें कई सारे सेंसर होते हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, ऑक्सीजन सैचुरेशन सेंसर, यहाँ तक कि इसमें हम ECG और कई सारी अलग अलग मशीन भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस पर आप हाथ अपने लगाते हैं, इसको जब अपने सेंसर को अपने से पकड़ते हैं और कुछ करते हैं, तो उस पर क्या होता है, वो सेंसर एक तरह से जो भी आपका हार्ट रेट है या जो आपका टेम्परेचर है, वो सब मेजर करता है। और एक छोटा सा हमने इसमें लगाया है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग आर्डिनो भी कहते हैं। तो उस आर्डिनो माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस डेटा LCD पे भी इमीडिएटली शो होता है, और एक वाईफाई मॉड्यूल है, जिससे क्या है कि वो ऑनलाइन डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो डेटा हमने उसको रीड कराया, वो ऑनलाइन दिखा देता है, जिससे कि जो भी डॉक्टर है जिसको ऑथेंटिकेशन है, वो उसको डेटा को कहीं से भी, मतलब दुनिया में वो कहीं भी हो, इंटरनेट जहाँ भी है, वो वहाँ से उसे एक्सेस कर सकता है। और जैसे कि नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करता है, बाकी सारे, तो ये सारा डेटा हम लोग उसे उसके घर पर ही प्रोवाइड कराया था, और वहीं से हमें पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस डेटा पे काम करते हुए किस किस किस्म के चैलेंजेस आपको आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोडिंग करनी पड़ी। जो हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो आर्डिनो है, उसके ऊपर हमें कोडिंग करनी पड़ी। जो हमारा सबसे बड़ा मुश्किल था, पॉइंटर था, हमने उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करी। हमने एकजुट होने उसको प्रोजेक्ट को एक यूनिट में बनाना, कंबाइन करने की कोशिश करी, पर उतना पॉसिबल हो नहीं रहा था शुरुआत में। पर एट दी एंड हमने उसको कंबाइन करा, और हमें एक सिंगल कॉम्पैक्ट हमने एक ह्यूमन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, जो हर एक ह्यूमन अपने पास रख सकता है। अगर आपको अपने कहीं भी लेके जाना है, अपने बैग में रख सकते हो आपको किसी अपने मदर का चेकअप कराना है, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक और जो समस्या आई थी हमारे पास, वो ये थी कि जब हम सारे सेंसर को जब कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये था कि वो एक बड़ा सा सर्किट के होने के कारण हीटअप हो जाते थे, मतलब सेंसर गर्म हो जाते थे। तो इससे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जो बॉडी टेम्परेचर का सेंसर था हमारा, जिसका नाम है DS18B20, वो अपने आप गर्म हो रहा था, और वो हमारा टेम्परेचर मेजर करने की बजाय अपना टेम्परेचर मेजर कर रहा था, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा था उस पर, और वो थोड़ा सा पैनिक भी कर सकता है पेशेंट उस वजह से। तो हमने जो कंक्लूजन पे हम ये इस चीज़ पे आए कि हमने सारे सेंसर्स को, मतलब जितने कंबाइन हो सकते थे उतने तो हमने कंबाइन करे बिना किसी चैलेंज के, पर बॉडी टेम्परेचर का जो सेंसर था उसको हमने अलग कर दिया, ताकि उसका एक आसान सर्किट हो, उस पर लोड कम पड़ेगा तो वो कम हीटअप होगा, और अच्छे से ये सारी रीडिंग सही से दिखा सकता है। और हमने इसमें रजिस्टर भी लगा दिया, जिससे थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट कम हो और हीटिंग इफेक्ट भी कम हो। 4 मई के आयोजन का वोट ऑफ थैंक्स प्रेमी बहन डॉक्टर ऋचा सत्संगी द्वारा दिया गया। So the children are actually happy to see you joining in this great